Respected BDO madam, respected Tahsildar sir, respected principal madam, parents of Piyush Kumar Patel, and my dear students and all the staff of OAV Lefripada. A very good afternoon to all of you present over you. I feel highly honored and privileged to stand before this august gathering today. It is truly a matter of pride for me to get this opportunity to express my thoughts and experience in the presence of such distinguished officers and respected educators who continuously work for the development of education and society. I extend my sincere gratitude to the whole staff of our school for this kind of felicitation ceremony. It's not only a felicitation ceremony for the winners of state level science exhibition. It is the ceremony to motivate the students to learn something from this winner. Today, I'm standing here to share my experience in state level exhibitions. First of all, I would like to start the quotation of a famous personality. It is none other than the 11th President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Dream is not that which you see in sleeping. Dream is not that which you see in sleeping, it is something that does not let you sleep. सपना वो है जो हम सोते वक्त नहीं देखते, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देते. एज ए टीचर हर किसी का सपना होता है कि जिस स्कूल में भी आप पोस्टिंग हो वहाँ पर बच्चे के लिए कुछ करें, स्कूल के लिए कुछ करें. ठीक है, तो आज अगर यहाँ पर मुझे कुछ कहने के लिए मौका मिला है, इसका मतलब लगता है कि आई हैव डन समथिंग फॉर द स्कूल, समथिंग फॉर द स्टूडेंट, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल दैट आई हैव डन समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड आवर स्कूल. स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन, जिसको हम बोल रहे हैं स्टेट लेवल बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी, which was held at DN High School, Keonjhar. And the theme of this year's science exhibition was STEM for Viksit and Atmanirbhar Bharat. STEM, S-T-E-M, stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics. And under the theme of this year's science exhibition, there were 7 sub-themes, starting from sustainable agriculture, waste management and alternative to plastics, green energy, emerging technologies, recreational mathematical modeling, health and hygiene, and the last one is water conservation and management. These were the 7 sub-themes under the theme. And in the state level science exhibition, there were a total number of 210 projects, 7 projects from each district, and 30 projects from each sub-theme. That means in mathematical modeling there were 30 projects, and जो हमारा वाला प्रोजेक्ट था वो लास्ट में था, क्योंकि जो वहाँ पर सेटअप होता है प्रोजेक्ट्स का, वहाँ पर क्या होता है कि ए से स्टार्ट करते हैं. जैसे ए से हो गया अनुगुल, तो जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम के हिसाब से वहाँ पर होता है. तो सुंदरगढ़ लास्ट में आता है, दैट मीन्स लास्ट में हमारा प्रोजेक्ट था. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम डे 1. इट वॉज ए 3 days प्रोग्राम, 3 दिन का प्रोग्राम था. तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से. जर्नी स्टार्टिंग कैसे हुआ? पहला तो ऐसा होता है कि जाने के लिए और आने के लिए टिकट बुक कर लेते हैं पहले, और
लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि जो बस है वो कैंसल्ड हो गई बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ बस। ठीक है, तो सुंदरगढ़ से जाने वाले थे केवंझर, बस हो गया ब्रेकडाउन, प्लान हो गया चौपट। फिर क्या करें, तो पेरेंट्स ऑफ पीयूष क्या करते हैं कि हमको लेके जाते हैं, जो सुंदरगढ़ से जाने वाला था हम जाते हैं झारसुगुड़ा, और जो जिस बस में हम बुक किए थे टिकट, वो जो कंडक्टर होते हैं वो ठीक कर देते हैं वहाँ पर झारसुगुड़ा से जाने के लिए 2 सीट। तो वहाँ से स्टार्ट होता है जर्नी, रात को 8 बजे बैठते हैं वहाँ पर, और सुबह नेक्स्ट 26 दिसंबर को वहाँ पर 3 बजे पहुँचते हैं। 3 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पर क्या होता है, जिस स्कूल में ये जो स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन होने वाला था, यहाँ पर हो रहा था, वहाँ पर क्या होता है, जितने पार्टिसिपेंट थे पहले से आ गए होते हैं, तो वो स्कूल भरा हुआ होता है, तो वहाँ पर जगह नहीं मिलता हम लोगों को रात के 3 बजे। ठीक है, तो फिर बोलते हैं कि जाओ दूसरे स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, पीएम श्री गर्ल्स हाई स्कूल के उधर में जाओ, वहाँ रहने के लिए मिलेगा। तो फिर वहाँ से फिर ऑटो पकड़ते हैं, फिर पीछे आते हैं रहने के लिए। तो वहाँ तो फर्स्ट डे में पता नहीं होता है हम लोगों की पहला दिन का प्रोग्राम क्या है, स्टार्टिंग से जजमेंट हो जाएगा या नहीं होगा। तो हम 3 बजे पहुंचते हैं, 3 साढ़े 3 हो जाता है रूम पहुंचते। तो पीयूष को पता नहीं है कि एग्जीबिशन होगा, मतलब सुबह से ही स्टार्ट होगा कि नहीं। तो मैं तो सो जाता हूँ आराम से, कम्बल वम्बल ओढ़ के, वो पढ़ता रहता है रात भर। ठीक है, पढ़ता रहता है, सुबह हो जाता है, फिर जाते हैं स्कूल जहाँ पर एग्जीबिशन हो रहा था। तो पता चलता है वहाँ पर कि जो फर्स्ट हाफ है, डे 1 का फर्स्ट हाफ, वहाँ पर खाली रजिस्ट्रेशन होने वाला था, एंड सेकेंड हाफ में क्विज कंपटीशन एंड सेमिनार होता है। तो ही हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन बोथ। सो द टीम ऑफ सुंदरगढ़ से जो 7 प्रोजेक्ट गए हुए थे, या फिर जितने भी टीचर गए हुए थे, गाइड टीचर, तो हम डिसाइड करते हैं कि चलो कुछ घूम के आते हैं कहीं पर, केवंझर आए हैं तो चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं कुछ जगह। एंड वी डिसाइडेड टू विजिट सेक्रेड माँ तारिणी घटका, एंड डिसाइडेड टू विजिट सानघागरा वाटरफॉल। हम लोग गए वहाँ पर, विजिट किए, माँ तारिणी मंदिर गए, माँ से आशीर्वाद लिए, फिर आए सानघागरा वाटरफॉल विजिट किए, एंड ऐसे ही एक दिन कट जाता है। और नेक्स्ट दिन सेकेंड डे में क्या होता है, सेकेंड डे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री मोहन चरण मांझी सर आते हैं, एंड ही इनागुरेटेड द एग्जीबिशन को इनागुरेट करते हैं। एंड लगभग 12 बजे क्या होता है, जजेस सब आते हैं, एंड दे स्टार्टेड देयर जजमेंट स्टार्ट हो जाता है 12 बजे। तो हमारा तो स्टॉल लास्ट में था, और जो जजमेंट के लिए जो सर जो मैडम 2 आए थे हमारे सब थीम के लिए, स्टार्ट करते हैं 12 बजे से, और 2 बजे करीब 2 बजे ब्रेक होता है लंच के लिए, और उतने में वो बस 12 या 13 प्रोजेक्ट खत्म किए होते हैं, और पड़ा हुआ है इधर बहुत सारा प्रोजेक्ट। ठीक है, 12-13 मतलब, और 17 के करीब बचा हुआ है इधर प्रोजेक्ट, और हमारा पूरा लास्ट है। एंड जो जजेस थे वो गए खाने के लिए, लंच खत्म करके आए, 3 बज गया, 3 बजे फिर स्टार्ट होता है जजमेंट स्टार्ट होता है। आते हमारा नंबर आते ही 6 बज जाता है, शाम के 6 बज गया। और जब 6 बज गया, वहाँ पर जो स्टेज बनाया गया होता है, वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर स्टेज है उसके सामने ही हमारा स्टॉल है, और मैं डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइजर सर को कॉल करके बोल रहा हूँ, सर बोलिए ना उधर स्टेज में हमारा अभी जजमेंट होने वाला है, बंद करें थोड़ा। लेकिन मेरा बात तो नहीं सुने, वो वहाँ पर ही थे स्टेज के सामने। मैं उनको फोन करके बोला कि हमारा जजमेंट होने वाला है सर, और 2-3 बाकी है, तो थोड़ा कम कीजिए ना, वो जो कल्चरल प्रोग्राम है थोड़ा स्टे कीजिए, उसको थोड़ा लेट में करने के लिए बोलिए। तो नहीं हो पाया, यही मतलब चल रहा है, म्यूजिक सिस्टम बज रहा है बहुत जोर से। ठीक है, और उसमें भी चल रहा है हमारा इवैल्यूएशन, कंटिन्यू है, जजेस सुन रहे हैं, पीयूष अपना एफर्ट दे रहा है कि कैसे उनको समझाएं ठीक से, कैसे कैसे करके खत्म हुआ। एक चीज अच्छा लगा कि जो जजेस थे मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए जज करने वाले जो थे, वो ध्यान से सुन रहे थे। 30 प्रोजेक्ट था, ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसको ना सुने होंगे। बच्चे जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन रहे हैं। 10 मिनट बताओ, 15 मिनट बताओ, 5 मिनट बताओ या 20 मिनट बताओ,
जितना बोलना है बच्चा का हर एक बात सुन रहे हो दोनों जजेस। भले ही वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे लेकिन पूरा बात सुन रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि जजेस कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जजमेंट कैसा होगा, थोड़ा मन में सवाल आ रहा है मेरा। चलो कोई बात नहीं, सुन रहे हैं, अच्छा बात है, अच्छी बात है। तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको कि देख जो भी है जितना पढ़ के आया है पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से देना, पूरा बोलना, और सुन रहे हैं पूरा देना, जितना भी है पूरा बोलना है, रुकना नहीं है। सुन रहे हैं, अगर ना सुनते तो पॉइंट भी आ जाते, सुन रहे हैं तो स्टार्टिंग से पूरा बोलना है जो बोलना है हमारा, जो हमारा कंसेप्ट है। हमारा प्रोजेक्ट का नाम था एक्सप्लोरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैडम बोल रहे थे कि मतलब वो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सुनना चाहते हैं तो बता देता हूँ। एक्सप्लोरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्लास 10। तो वहाँ पर क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम बेसिकली एनसीईआरटी बुक में दो ही चीज पढ़ रहे हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक डायरेक्ट दिया हुआ है। तो मैं सर्च करता रहता हूँ कि किस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बन सकता है। तो मैं देखा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा मतलब उसको प्रैक्टिकली कैसे शो कर सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तो कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रैक्टिकली कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन कंसेप्ट था पहला। दूसरा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या कि हम उसका रूट्स निकाल सकें, ये हो गया ये। तो दो कंसेप्ट हो गया ये। उसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो व्हाट आर द एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है। तो उसके बारे में भी बहुत सर्च किया, ढूंढा, मिला मुझे कुछ, मैं उसको पीयूष को दे दिया, उसने नोट किया। ये 3 कंसेप्ट हो गया। इतने में ही हम ये कंसेप्ट हो गया। फिर कंक्लूड करने के लिए कुछ बोला, और पीयूष मतलब क्यूरियस इतना है कि वो एक दिन आके साइंस समीर सर का वो बोल रहा है कि सर मुझे इंट्रो के लिए कुछ लिख के दीजिए ना। सर कुछ हेल्प किए, उसको मदद किए इंट्रोडक्शन के लिए, ये ऐसे ऐसे बोलोगे तो ठीक होगा। मेरा कुछ था, दोनों को मिला के वो बोल दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो कंसेप्ट इकट्ठा किए थे। और जिस दिन डिस्ट्रिक्ट लेवल का जजमेंट होने वाला था, हम जा रहे थे पीयूष के पापा, मैं और वो। तो वो खुद सर्च करके देखा कि सर मैं एक फॉर्मूला निकाला, देखिए तो ये हो रहा है कि नहीं। तो देखें कि ये इसमें भी हो रहा है। तो कुल मिला के 2 फॉर्मूला हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का 2 फॉर्मूला मिल गया हमको, 2 फॉर्मूला मिल गया, कुछ एप्लीकेशन मिल गए, ठीक है। जैसे कि हम बैटिंग करते हैं तो बॉल को हिट करते हैं, बॉल ऐसे ही करके जाता है, जो ट्रेजेक्टरी बनता है बॉल का, जो वे ऑफ मूविंग है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बुक में पढ़ते हैं, लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत सारा है। जो ब्रिजेस होता है ऐसे करके कर्व जैसा, वो कुछ नहीं, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथमेटिक्स का एक शेप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा एप्लीकेशन है जो हम दिखाए थे वहाँ पर। और मुझे ज़्यादा खुश कब लगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रॉस कर चुके थे हम, स्टेट लेवल के लिए वो खुद सर्च करके, डिस्ट्रिक्ट लेवल में उसको कुछ क्वेश्चन पूछे थे जजेस, तो उसको वो खुद सर्च करके एक ब्रिज बनाया था, 3D मॉडल बनाया था, ब्रिज बनाया था, उसके साथ साथ सैटेलाइट बनाया था। और ब्रिज में वो कर्व दिखाया था और सैटेलाइट का वो जो कर्व दिखाया था, और बोला था कि मतलब ये जो कर्व है सैटेलाइट का, उसमें क्या होता है, जो नेटवर्क होता है उसमें रिफ्लेक्ट होके मोबाइल में या जो टीवी देख रहे हैं उसमें नेटवर्क आता है। तो ये कुछ इस तरह से कुछ डिजाइन बना के लिए थे हम स्टेट लेवल में। और इसमें पीयूष के साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी बहुत हाथ है, बहुत मदद किए हैं, तो उनको भी कंग्रेचुलेसन, बहुत मेहनत किए हैं साथ में। मैं बोल रहा था कि आई हैव डन समथिंग फॉर द स्कूल, लेकिन ये मेरा अकेला का मेहनत नहीं है। मैं तो बस कुछ कंसेप्ट दिया था कि ये ऐसे हो सकता है, उसको अमल करने वाला पीयूष है, उनके पेरेंट्स हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं, मेंटली सपोर्ट किए हैं, फिजिकली सपोर्ट किए हैं, इकोनॉमिकली सपोर्ट किए हैं उसको। तो जैसे बोलते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है। तो एक टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं, खाली अकेले एक टीचर कुछ नहीं कर सकता, एक स्टूडेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर पीयूष सोचता कि मैं एक प्रोजेक्ट लेके स्टेट लेवल क्रॉस कर जाऊंगा तो ये नहीं हो पाएगा अगर टीचर का साथ ना हो, या फिर मैं सोचूं कि मैं ही स्टेट लेवल क्रॉस करके लेके जाऊंगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा का मेहनत चाहिए,
अगर दोनों साथ मिलेंगे तब जाके ये होगा, और लगता है कि दोनों साथ की मेहनत की है तब ये मुकाम अचीव कर पाए हैं। और उम्मीद है कि जोनल लेवल में भी कुछ अच्छा परफॉर्म करके नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हो जाएं। और जो सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ का नाम रखें, लफरीबड़ा ब्लॉक का नाम रखें, कोई भी लफरीबड़ा का नाम रखें। तो बस मैं उतने में ही अपना जो स्पीच है कंक्लूड करना चाहूँगा। थैंक यू।